السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ کون صاحب؟ ہم نواب حیدر بول رہے ہیں۔ کہاں سے؟ مدھیہ پردیش ایم پی سے۔ کون سے ضلع میں ہے؟ مندسور میں ہے؟ مندسور۔ اچھا، فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ ہم کی ویڈیو دیکھے آواز صاف نہیں آ رہی۔ یوٹیوب پر جو ہے آپ کی ویڈیو دیکھے ہم نے۔ ہاں، کیسی ہے ویڈیو؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ویڈیو کچھ تو صحیح ہے، کچھ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے وہی بتاؤ، غلط کیا ہے وہی بتا، دونوں بتا۔ ایک سال ہو گئی آپ نے ہمارا دونوں بتائیں گے۔ کوئی خیال ٹھیک ہے، ابھی آ رہا ہے۔ ہاں ہاں جی، جو غلط ہے وہی بتا، جو صحیح ہے وہ بھی بتا۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اعلیٰ حضرت عالم فاضل تھے، اور کچھ؟ مفتی تھے، بس اتنا مانتے ہیں، بڑے عالم تھے، قابل عالم تھے، لیکن ہر بات نہیں مانتے ان کی، نبی کی طرح سے جیسے اللہ رسول کی ہر بات مانی جاتی ہے نا، ایسے ان کی بات نہیں مانتے۔ جیسے تھانوی صاحب کی بھی ہم ہر بات نہیں مانتے، تھانوی صاحب، نازی صاحب، گنگوئی، جتنے بھی بڑے دیوبند کے، ان کی بھی ہر بات نہیں مانتے۔ جیسے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، جیسے ہم نہیں مانتے کہ یہ کس نے دیکھ لیا، برزخ کی باتوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں، کون صاحب ہیں، اس میں تو کھلی توہین ہے کہ نہیں صاحب؟ اور الیاس ستار قادری کے بارے میں آپ کیا اس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بٹوایا، لبے کے اتار کے نعرے لگوائے، میلاد نامہ پڑھوایا، صحابہ کرام کو کہا وہ مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں، غوث پاک کو کہا وہ بھی مجدد نہیں تھے، میں بھی مجدد نہیں ہوں، اپنے آپ کو غوث پاک سے جوڑ رہا ہے، صحابہ کرام سے جوڑ رہا ہے، بس یہاں۔ اور اس کے علاوہ 27 میں پڑھو آپ، جو بھی اس کے اجتماع میں گیا ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب کی بخشش ہو گئی، جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ پڑھو فیضان سنت صفحہ 27 پرانی، ایک ایڈیشن میں 44 میں ہے، اور صفحہ 31 میں الیاس قاضی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے اور یہ بیٹھا ہوا ہے اللہ کے رسول کے سامنے خانہ کعبہ میں۔ صفحہ 3 میں لکھا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ اشارت میں مقبول ہے، اور اس کو ایک شخص اللہ کے رسول کا سلام پیش کرتا ہے، اور یہ کرسی پہ بیٹھا ہے الیاس قاضی، کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا، تو الیاس قاضی کھڑا تک نہیں ہوا ہے، کرسی سے اٹھا بھی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی خوشی تاری ہے، نہ کیفیت تاری ہے، بس ویسے ہی جواب دیتا سادہ طریقے سے۔ اب بتاؤ، اللہ کے رسول سے سلام بھیجے تو دیوانہ پاگل ہو جائے گا کہ نہیں، خوشی میں ہے کہ نہیں صاحب؟ بتاؤ صاحب۔ ہاں، وہ چیز تو ٹھیک ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں، کا وہ عقیدہ کدھر جائے ٹھیک گا؟ ہے، دیوبندیوں کی باتوں کو اتنا سیریس لینا اور اپنے والوں کی لینا کہ یار چلو کوئی بات نہیں، اپنا آدمی ہے۔ پہلے آپ قاضی تو حالات کو مانتا تو کہتے حضور کے سلام کا جواب بیٹھ کے دیے تو کیا ہوا؟ اسے تم بدلی میں شمار نہیں کرتے ہو، اسے تم توہین میں شمار نہیں کرتے ہو کہ بیٹھ کے سلام کا جواب دے رہا اللہ کے رسول کے سلام کا جواب دیا۔ اچھا، یہ چیز سن لیجیے، آپ کا عقیدے کے مطابق نہیں، یہ بتاؤ کہ الیاس قاضی کی بات آئے تو ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ جب دیوبندیوں کی بات آتی ہے تو پھر ڈنڈے کیوں ٹوٹتے ہو؟ جب یہ سوچو کہ اللہ کے حالات کو مانے تو وہ گستاخی کر لے تو معاف کر دیں گے، اگر دیوبندی کرے گا تو معاف نہیں کریں گے۔ یہ ترازو دو طرح کی کیسی ہو گئی؟ تھوڑی ادھر بھی سن لیجیے۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اتنے بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کے عقیدے کے مطابق پھر ہم کدھر جائیں؟ ارے خالی اجمیر شریف جاؤ آپ، کلیر شریف جاؤ آپ، مخدوم ماہم بمبئی جاؤ آپ، حضرت شیخ علاؤ الدین صابر کلیری کے مزار پہ جاؤ، حضرت شیخ کمال الدین دھاروی کے مزار پہ اندور جاؤ، حضرت شیخ نجم الدین غوث الدین قلندر کے مزار پہ جاؤ، اندور کے آگے 70-80 کلومیٹر آگے، ایسے مزار پہ جا کے بیٹھو، مراقبے کرو، مشاہدے کرو، وہاں جا کے فاتحہ پڑھو، ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو۔ دعا مطلب تو صرف اللہ سے مانگی جائے گی، وسیلہ لگا سکتے ہیں نیک اعمال۔ ایک سوال ہے ہمارا، ایک سوال اور آگے ہمارا۔ فرماؤ صاحب، حکم۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوزۂ محترمہ ہے ان سب کو پیش کی جاتی ہے، آپ نے صحاباتی کے بارے میں کہا۔ وہ فاضل بریلوی نے لکھا ہے الملفوظ میں، ان کے بیٹے نے صفحہ 27 جلد 100 میں لکھا ہے الملفوظ میں۔ نہیں، آپ پہلی پوری بات میری سن لیجیے آپ، کہ آپ نے کہا کہ سب باتیں کرتے ہیں،
फिर हम इन बुजुर्गों के मज़ार मैंने पर नहीं जाएंगे। कहा, मैंने थोड़ी कहा है, वो फाजिल बरेलवी ने। आपने जिस किताब से भी लिख के कहा है उसके मुताबिक तो हवाला दिया ना। हाँ हाँ, जिल्द सोम अल मलफूज सफा 27। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए पहले। तो आज जब आप हमको बुजुर्गों का अकीदा देते हैं तो बुजुर्गों के जो मज़ार पर जाएंगे, फिर इनका ये अकीदा हमको कहाँ से मिलेगा? फिर कौन सी किताब में हम ढूंढ लेंगे? कुरान में है ना, कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए, अल्लाह फरमाता है उन्हें मुर्दा न कहो बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। ये कुरान से मिलेगा? ये तो वाक़या जब से फिर थोड़ी जिंदा है, मिलेगा। कुरान में अल्लाह ने जब फरमाया कि वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उन्हें अल्लाह की जानिब से रिज़्क़ मिलता है। कुरान से मिलेगा ना, हदीस से मिलेगा? हदीस फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ अन ताकुला अश्शादल अंबिया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाए। अब चीज सुन लीजिए। जब आपने शहीदों के बारे में कहा कि वो जिंदा है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है, उनको मुर्दा भी मत कहो, वो जिंदा है, कुरान में है। तो कुरान में है। तो जब फिर आम शहीद, चाहे इमाम हुसैन मान लो, सहाबा इकराम मान लो, हुसैन को अलैहिस्सलाम कहा करो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा सुनो पहले, ठीक है, ऐसे नाम बोल लिया करो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बोला करो। इमाम बुखारी ने अलैहिस्सलाम लिखा, पूरा नाम लिखा अलैहिस्सलाम। सुनो पहले मेरी बात सुनो। आप फाजिल बरेलवी के ऐसे नाम ले सकते हैं, मौलवी अहमद रजा खां साहब, बस। सुनो तो पहले पूरी बात सुन लो। मैं सबकी इज्जत और एहतराम, सबकी अदब और एहतराम के साथ नाम लेता हूँ, लेकिन बात के मुताबिक जो है थोड़ा सा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब ये जिंदा है तो क्या हमारे नबी, फिर क्या नबी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो तमाम नबियों के सरदार हैं हमारे नबी। जब सरदार है तो फिर अगर नबी की जौज़ाए मुहतरमा अगर वहाँ कब्र में उनके साथ मोहब्बत में बात हो जाए तो फिर उनके बारे में क्या ख्याल करेंगे? मन घड़त बातें नहीं चलती हैं। मन घड़त बातें नहीं है, लेकिन आप तो कुरान के मुताबिक हवाले दिए हैं। जब आम लोग जिंदा है तो फिर नबी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देवियों वाली बात मनमानी नहीं चलती। मनमानी तो आपकी बातों से पता चल रहा है। कुरान में है कुतिलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए, वो तो हम भी उनके बारे में कहा है, बल आया बल्कि जिंदा। वहाँ बीवियों का जिक्र नहीं है, वहाँ बीवियों का जिक्र नहीं है कि बीवियों के साथ जिंदा है, वो खुद बजाते खुद जिंदा है। ये मनमानी नहीं चलेगी। ये साथ अपनी मन घड़त तरीके से दलील दे देते हैं। इस्लाम में मन घड़त नहीं है। जब इस्लाम में मन घड़त नहीं है नहीं तो फिर नबी के बारे में क्या ख्याल है? 3 रकत की जगह आप 4 रकत पढ़ लो मगरिब में, ये क्या हुआ? 1 रकत बढ़ती तो पढ़ा है, एक अजान की जगह 2 अजान दे लो, कि क्या हुआ इसमें हरज क्या? 2 अजान दे सकते हैं। 1 तकबीर की जगह 2 तकबीर दे दो, कह दो कि मना अजान में तो कोई हर्ज नहीं है। अजान तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो, घर में। 1 अजान की जगह में 4 अजान देने चाहिए कब्र पे, जब फायदा होगा मुर्दे को। पहले दफन से पहले तो, ताकि कब्र में शैतान ही नहीं आए। क्या ख्याल है? अच्छा ये एक चीज बताइए और। अच्छा बताओ, कब्र पे पहले अजान देना मना क्या लिखा है? दफन से पहले अजान दे, मना क्या लिखा है? पहले मेरी बात सुन पहले। हाँ अतहर हुसैन, पहले बात सुन लिया कर, बड़बड़ मत बोला कर। हाँ सुना, समझे? पहले वो क्या सवाल पूछे, सवाल के जवाब दे पहले, बात हुई। सुना जल्दी सुना। मैंने ये कहा आपसे कि जब आम शहीद जिंदा है तो नबी के बारे में आपका क्या ख्याल है? नबी तो तमाम नबियों के सरदार हैं। वो सरदार है, सरदार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कब्र की बात कर रहा हूँ। जिंदा है, आप माँ जिस्म के जिंदा है। जब जिंदा है तो नबी की जौजा क्यों नहीं जिंदा हो सकते? अरे वो भी जिंदा है, लेकिन कब्रों में थोड़ी आती है। जिंदा है तो कब्र में पहुंच जाएंगे, मोहब्बत में बात हो जाएगी, क्या है? जिस्मानी तौर से आज तक ये तो तौहीन है, तौहीन अंबिया। फिर वो कब्रें खाली हो जाएंगी, वो कब्रें खाली नहीं देखा किसने जाते हुए? बेपर्दगी होगी, देखने में बेपर्दगी होगी, जाते हुए कोई देखेगा जिस्म के साथ जाते हुए देखा। और नबी की बीवियों को किसी ने नहीं देखा, हमारे साहबा ने तक नहीं देखा, साहबा ने भी नहीं देखा। अब ये चीज वासवादी उम्महातुम, नबी की बीवियां जो है माए हैं उम्मत की। जब उम्मत की माए हैं तो ऐसा थोड़ी, माए का मतलब थोड़ी कि तुम जिस साहबी ने चाहा देख लिया, ये मतलब थोड़ी दर्जे के हिसाब से माए हैं, दर्जे के हिसाब से माए। एक बात लेकिन जिंदगी में साहबा ने देखा के बारे में क्या नहीं। नबी ने तो पर्दा तक करवाया है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जो नाबीना साहबी थे, उनसे पर्दा भी करवाया, नाबीना साहबी से पर्दा करवाया। पहले ये बताओ कि हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया पर्दा करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम देख सकती हो।
पहले सुनिए, पहले हाँ। बड़बड़ मत करिए, पहले सवाल का जवाब दीजिए। हाँ सुनाओ साहब सुनाओ। मुल्ला बताओ अतर हुसैन, पहले बात सुनिए, है ना। सुनाओ बड़बड़ बोलता है। हाँ, तो साले- इलियास काजी के बारे में ही बताना कि जामे नहीं हम रातों बात कुफर का फतवा लगाए, हम रमजान के बाद ईद क्यों न मनाए, 1283 फैजान सुन्नत जालिम बादशाह से मिसाल दिया, जब कुफर का फतवा लगाया तो कलमा पढ़वाओ ना। खाली देवबंद वालों पे ही क्यों लेके बैठे होते हैं कि उस्ताद हरमैन में कुफर का फतवा है। ये तो अभी की बात है, उस्ताद हरमैन तो 100 साल पुरानी बात है, तो ये अभी की बात है, जामे नहीं से 15-20 साल पहले की बात है। एक बात तो सुनो, नबी के इल्म गैब के बारे में क्या ख्याल है आपका? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो बाला, जब न खुदा ही छुपा तुमसे करो रो दूरी। लेकिन नहीं शेर ये किसका शेर है? कुरान में है, वमा कान अल्लाह लियकुल गैब, अल्लाह अपने गैब पर किसी को मतला नहीं फरमाता, वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसूलिही मन यशा, अल्लाह चाहता है जिस रसूल को चाहता है चुन लेता है, उसको गैब अता फरमाता है। नहीं साहब, आपने जो कहा अभी, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो वाला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दूरी। आपने कहाँ से पढ़ा? फला युसिरु अला गैबी अहदा, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अपने शेर कहाँ से पढ़ा? उर्दू वाला है, उर्दू वाला शेर जो पढ़ा आपने, और कोई गैब अरे क्या, ये कहाँ से और पढ़ा कोई आपने? गैब क्या तुमसे नेहा, बहुत बड़े आलिम का शेर है, काबिल आलिम थे, किसका? और काबिल आलिम थे, लेकिन उनके मानने वाले अल्लाह के रसूल की मर्जी के इमाम को मुसलमान नहीं मानते। ये ये लिखा शेर भी किसने? पढ़ते हैं, मैं ये ये शेर भी पूछूं पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल की मर्जी के इमाम के बारे में कहते हैं नहीं नहीं, उनकी मर्जी के इमाम मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं आपने तो है। गैब के बारे में हाजिर माना, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस शेर को लिखा है किसने? और कोई गैब क्या? फाजिल बरेलवी का शेर है। फिर फाजिल बरेलवी को बरसे कलम की भरन फूले न्याम के चलन, चमन ऐसी चला जो हवा तुम पे करोड़ों दूर। तो फिर उल्टा सीधा क्यों बोलते हैं फाजिल बरेलवी को? अरे हर बात नहीं मानते यार, हर बात नहीं मानी जाएगी। उन्होंने लिखा कब्र में शैतान आता है, बेकार है, वो थोड़ी माना जाएगा। फिर हर बात नहीं मानते, फिर अब कौन सी बात उनके मानते हैं? हिसाब से, उनके मानने वाले हिसाब से मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोगों को मुसलमान नहीं मानते, उनके मानने वाले, तो कैसे हम मान ले साहब उनकी? मुल्ला अतर हुसैन, मुल्ला अतर हुसैन, पहले सुनना मुल्ला अतर हुसैन। काबे के इमाम को मुसलमान नहीं मानते, एक चीज सुनो, जहाँ से इस्लाम आया। हाँ हेलो, हाँ, एक चीज सुनो, आप कह रहे हो कि हम आला हजरत की हर बात नहीं मानते, कुछ कुछ बात मानते हैं। हर बात तो बदायूं वाले भी नहीं मानते, जामे अदर मिसर वाले भी नहीं मानते, मकनपुर वाले भी नहीं मानते, और ये मुबारकपुर अशरफिया वाले भी कहाँ मानते हैं। उन्होंने माइक से नमाज जायज करार दे दी, जनाब एक बात मुफ्ती निजामुद्दीन ने, मुफ्ती निजामुद्दीन क्या गद्दार है, मसले के आला हजरत नहीं है। एक बात सुनो पहले, आप तो पढ़ करके मत बोलो, पहले बात जो है उसको सुनो, उसकी जवाब दो। ये इधर उधर मत जाओ, अशरफिया मुबारकपुर अमजदिया ये वो फला ढिमका मत जाओ। आप इतना जवाब दो कि आला हजरत ने जो भी किताबों में लिखा है वो तो हदीस और कुरान के मुताबिक जो है लिखा है ना। किस हदीस में कि हमने उन्हीं के मुताबिक की बीवी पे, उसी का तो जवाब है ना। कहाँ है, किस हदीस में है? बताओ, हदीस बताओ। जो भी किताबें नहीं लिखी है, साहबा किराम का कौल बताओ, हदीस बताओ। वो कब्रें खाली हो गई, फिर बीवियों की कब्रें खाली हो गई, तमाम नबियों की। अरे भाई आप वो क्या हर रोज पेश की जाती है, हर रोज पेश की जाती है, पेश कर दी गई, ये भी सवाल होगा। हर रोज पेश की जाती है, पेश कर दी गई मुस्तकिल, तो जब पेश मुस्तकिल कर दी गई तो वो कब्रें खाली हो गई बीवियों की। अब वो फातिहा पढ़े कि नहीं, उन कब्रों पे जाके फातिहा पढ़े कि नहीं पढ़े? हेलो, और हमारे नबी की बीवी है तो 11 थी, अजवाज में 11 है। एक बात सुनो, आपकी उम्र कितनी है? हमारी 52 साल है। 52 साल है, इसलिए आप 60 के करीब पहुंचने वाले और सठिया गए हैं। अशरफिया वाले मुफ्ती निजामुद्दीन खुद देवबंदी में गए थे, वहाँ पर सैयद सरावा इलाहाबाद में गए थे, बाद में बहाना बना लिया कि आगे मालिक को बेवकूफ बनाते हैं, उनको गुमराह करते हैं। निजामुद्दीन साहब भी गए थे, गए थे, हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर काज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया, जामे दरारी में ऐसा लिखा है, अब देवबंदी अगर एक कहता है कोई भी और तकरीर ईमान से आपने सभी इबारत ख्याल वाली बात को सही मानता है तो वो भी बहुत बड़े उनमें भी इतना पैदा करने वाले लोग हैं, सब तरह के लोग हैं। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है, दोनों अपने अपने मान ले। ख्याल वाली इबारत बहुत गलत है, जो कह रहा है ख्याल लाने के, कौन ख्याल लाता है?
हर मुसलमान के दिल में अल्लाह रसूल का ख्याल हर वक्त रहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान नबी पर नाजिल हुआ है। जब मस्जिद नबवी में जाएगा तो पूरी नमाज के लिए याद रहेगा कि अल्लाह के रसूल की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। अब वो जो सिरात मुस्तकीम की इबारत की तायीद कर रहा है मुफ्ती अब्दुल अहद कुरैशी सुजानगढ़ वाला, वो बताया कि मस्जिद नबवी में किस ख्याल से नमाज पढ़ेगा? क्या ये ख्याल से नमाज पढ़ेगा मैं अपने बाप की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूँ? ये ख्याल दूर करके जाएगा अब्दुल अहद कुरैशी सुजानगढ़ वाला मजा की जब नमाज पढ़ेगा मस्जिद नबवी में, यही ख्याल से नमाज पढ़ना पड़ेगी हम अल्लाह के रसूल की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। तो क्या ज़रबे लगाएगा, झटके दे दे के ज़रबे लगाएगा ख्याल निकालने के लिए? अरे दोनों मक्कार हैं, दोनों में मक्कारियां हैं, दोनों में बहुत बड़ी बड़ी खवासत है, दोनों खड़े हैं, दोनों अपने मुल्लाओं को देखते हैं, ये नहीं देखते कि अल्लाह और रसूल का क्या फरमान। अल्लाह रसूल के फरमान को देखो, अपने मौलवियों को क्यों इतनी फिक्र में पड़े हुए जो मौलवी ने क्या गलती नहीं की, मौलवी क्या गलती नहीं, फिर सर सैयद अहमद खान रहमतुल्लाह अलैह को क्यों नहीं मानते? उसको भी मान लो ना यार, वली मान लो, कुतुब मान लो, अब्दाल मान लो। गुलाम कादियानी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जबकि एक तरफ तो गलत कहते हो कुफ्र बका, दूसरी तरफ अपना वाला कर देते, नहीं हमारा वाला सही। इलियास कादी ने कुफ्र बके और किए, उसको सही मान रहा है, हालात को मान रहा है। और इसी तरह से दारुल देवबंद का फतवा है अमीर तबलीग जमात कांगरजी पर, अब उनके मानने वाले उन्हें सही मान रहे हैं। दोनों में गड़बड़ सड़बड़ चल रहा था और तो कौम का हाल ही खराब है, हवा का हवा ही खराब हो चुका है, हवा का हवा तवा का तवा ही खराब हो चुका है। कुरान की तफसीर पढ़ते नहीं है, चित्तौड़ में एक भी जगह तफसीर नहीं होती, उदयपुर में एक भी जगह कुरान की तफसीर, वो खालिद बरकाती सुना तफसीर करते थे वो भी बंद हो गए। खालिद बरकाती उदयपुर में खैरादी वाड़ा माल कहीं थे, तो ये राजस्थान में एक भी जगह कोई भी बरेली कुरान की तफसीर करता। अब ये कई 4-5 जगह तफसीर होती है समझ में, तफसीर अब्दुल हफीज साहब नदवी वो कासमी तफसीर करते हैं, कारी भी हैं, मुफ्ती भी हैं, आलमी तफसीर बयान करते हैं, 12 पारे 14 पारे हो गए। हमारे 4 या 5 जगह तफसीर कुरान की होती है। और भोपाल में 88-86 मस्जिदों की मैंने लिस्ट भेजी है, 89 मस्जिदों की पहले आई थी, कुरान की तफसीर बयान होती है। मुफ्ती अबुल कलाम कासमी साहब 5 जगह तफसीर करते हैं, हज़रत मौलाना काजी सैयद मुश्ताक नदवी मदनी साहब 6 जगह या 5 जगह तफसीर बयान करते हैं। एक आदमी 5-5 6 जगह तफसीर। हाँ हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं शरीफ रजा बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड रहता हूँ मैं। अरे कौन से उत्तराखंड में कहाँ रहते हैं? रुद्रपुर में? उत्तराखंड रहता हूँ मैं, उत्तराखंड से हूँ। नहीं मैं जाता रहता हूँ उत्तराखंड, रुद्रपुर है, कदरपुर है, शायद कहाँ रहते हैं? एक मिनट अभी 1 मिनट में आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। नहीं कौन से जिले के अंदर है आप उत्तराखंड में? काशीपुर में है? रहता हूँ काशीपुर। काशीपुर में जानते हो जनाब डॉक्टर यूनुस साहब बेलजोड़ी वाले? अच्छा, डॉक्टर यूनुस साहब को जानते हो बेलजोड़ी वालों को? जी जानता हूँ, अभी इलेक्शन लड़े थे वो। हाँ वो इलेक्शन वहाँ से लड़े थे जसपुर से, बेचारे बहुत बढ़िया नेक कलंदर आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, हमदर्द मिल्लत। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था आपसे। इरशाद फरमाओ साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था, आप हमारे यहाँ दावत पे तशरीफ ले आते तो। कहाँ पर? काशीपुर? हाँ काशीपुर। वो मुफ्ती कासिमुल काजी सबसे बड़े मुफ्ती वहाँ के काशीपुर के, और ये जुल्फकार तो सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, जी उनका बड़ा मुखालिफ है हजरत पीर सैयद सकलैन मियां रहमतुल्लाह अलैह का, जुल्फकार सकरालवी। मैं दावत पे चाह रहा था बुलाना, एक बार मुलाकात करना। नहीं आप मुलाकात करिए, और ये मगर जुल्फकार नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये मुफ्ती आलम मुरादाबाद जो उन्हें जानते हैं, मुफ्ती आलम मुरादाबाद को आप? मुफ्ती अयूब खान साहब नहीं, उनका भी मुखालिफ है ये सकराले वाला, ये जुल्फकार हर किसी को देवबंदी बनाता है। सगा दोस्त इफ्तिखार है मऊरानीपुर में, इसकी दोनों बहनें देवबंदी के घर में, नजीबाबाद में मुफ्ती इफ्तिखार की, यही ककराले वाला ककरालवी जुल्फकार ककरालवी का दोस्त है मुफ्ती इफ्तिखार। हाँ तो आप खास काशीपुर में ही रहते हैं? जी काशीपुर रहता हूँ मैं इंशाल्लाह आऊंगा काशीपुर, और बहुत अच्छा। आप किससे मुरीद है? क्या महाराज शहीद से मुरीद है? यहाँ से अभी दरअसल MP मंदसौर में आया हुआ हूँ, कल परसों जा रहा हूँ मैं घर, तो आप तारीख दे दें दावत की, मुझे काशीपुर मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह। आप कब की तारीख रखेंगे? बस मैं 20 तारीख को निकल रहा हूँ, आप उसके बाद कभी भी आ जाइए इंशाल्लाह। रमजान बाद सही रहेगा? ईद के बाद? हाँ रमजान से पहले। चलिए ईद बाद। नहीं रमजान में मैं इंडिया में नहीं रहूंगा, इंडिया के बाहर जा रहा हूँ। अच्छा। मैं कुरान शरीफ भी सुनाऊंगा। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ में 6 दिन पहले ललितपुर में तराई पढ़ाता था वहाँ, जब से मैंने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कहा ना, तो ललितपुर के तमाम लोगों ने मुझे बुलाना बंद कर दिया कि ये मुसलमान नहीं है, मतलब आला हज़रत को नहीं मानता। ललितपुर में तराई पढ़ाता था, तो ललितपुर वाले इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते।
थोड़े बहुत कहते हैं, आम सुन्नी नहीं कहते, जो गुलजार मियां साहब के मुरीद हैं। इसके बाद तो आप तशरीफ ले आएंगे ना? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा साहब, किसके मुरीद हैं आप? सैयद याहिया मियां साहब के हैं? अरे मैं किसी का मुरीद उरीद ना हूँ। बरसाती लगाते हैं ना आप? अरे मैं तो कुछ भी ना लगाता, मैं तो ऐसे ही आम आदमी हूँ अभी। ठीक है। मौलाना मिंजार साहब हैं जो मुफ्ती आजम, वो काजी हैं राम काशीपुर के, उन्हें भी जानते हैं? मुफ्ती के मामला कम ही रहते हैं मेरे, ज्यादा नजदीक नहीं रहता हूँ मैं। उन्हें तो जानते हैं आप, कासिमुल कादरी साहब को? नहीं जानता मैं किसी को भी। अरे काजी जसपुर में उन्हें जानते हो कि मौलाना मुफ्ती जली साहब जो भोजपुर में पढ़ाते हैं, खतीबुल हिंद में बहुत बड़े। किसी को मुफ्ती लाइन की मुफ्ती जली साहब इस वक्त के सबसे बड़े खतीबों में, मुफ्ती अशफाक साहब जो उस्तादुल उलमा है, मौलाना। मैं नेता लाइन के लोगों को जानता हूँ, मैं राजनीति करने वाला आदमी हूँ। ये अच्छा। मौलवी लाइन के लोगों से। अच्छा अच्छा, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह हम आएंगे, फिर देख लेंगे। डॉक्टर यूनुस साहब से मिले तो सलाम बोलते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी है। डॉक्टर साहब से जो है मेरा मामला अच्छा है, और आपके चेयरमैन साहब जो है रामनगर में, अरे वो हाजी इकराम साहब, अकरम साहब, उनसे भी मामला हाजी अकरम साहब तो बहुत जबरदस्त आदमी, शख्सियत है रामनगर की। हाजी अकरम साहब तो रामनगर की शख्सियत है। वहीं हाजी इकराम साहब है टांडा में, रामनगर में, वो भी शख्सियत है। और हमारे जो हैं दुर्रानी साहब हैं, दुर्रानी साहब, वो अरे माशाल्लाह आपका मामला लिंक बहुत तगड़ा है माशाल्लाह। फिर तो ये क्या कहते हैं, ये थे ना पिपलसाना में, क्या नाम था उनका, विधायक जिनका इंतकाल हो गया, रिजवान थे वो। अरे हाँ रिजवान साहब, मर्द कलम थे, बहादुर शख्सियत थे साहब। हाँ, आप इन लोगों के नाम पूछो। आप राजनीति लाइन में मैं ज्यादा। चलो मैं इंशाल्लाह फिर आऊंगा। डॉक्टर यूनुस साहब के अपन ठहरेंगे, जो उनका शादी हाल है ना, शादी हाल बनाया है जी नदी के किनारे, इंशाल्लाह पर वहीं ठहर के सुकून से बात करेंगे। ठीक है, ठीक। और डॉक्टर यूनुस साहब भी एक बार मंत्री बन जाए, बहुत फिक्र में है वो, जरा मंत्री बन जाए वो। हाजी इकरम साहब रामनगर वाले जो कलम